Come on, tell your neighbor, turn to your neighbor and say, are you ready for the surgery? अपने पड़ोसी से कहें, क्या आप सर्जरी के लिए तैयार हैं? Because today's word might cut some people. क्योंकि आज जो वचन है वो कुछ लोगों को काटने वाला है. Amen? Okay. You guys are a different kind. आप लोग एक अलग प्रजाति है, मैं जानता हूँ. I haven't seen people who are so excited for surgery. मैंने ऐसे लोग नहीं देखे जो इतने उत्साहित होते हैं सर्जरी के लिए. But it's a good thing because it will be a spiritual surgery. लेकिन ये एक अच्छी बात है क्योंकि ये सर्जरी आत्मा की है. And the Lord will remove whatever He wants to remove. और जो कुछ प्रभु हटाना चाहता है वो हटाएगा. Amen? So come on, with a sincere heart, let's pray that, Father, remove everything in my life. इसीलिए ईमानदारी से अपने दिल से हम ये प्रार्थना करें, पिता हर वो बात मेरे जीवन से हटा दे which is not pleasing to you. जो तेरी आंखों में, तेरी नजरों में आनंद का कारण नहीं. Prune me, Father. I submit my heart to your Spirit, O Lord. पिता, अपना हृदय में आपकी आत्मा के अधीन देता हूँ. Let your word teach us, guide us, आपका वचन हमें सिखाए, हमारी correct अगुवाई us, करे, हमें सही करे, challenge us, हमें चुनौती दे, push us towards our destiny. अपने उद्देश्य की ओर हमें आगे बढ़ाए, धकेले. So that, Father, every hindrances that stopped us to move towards our calling in last year, Father, we are going to crush these hindrances this year in the name of Jesus. ताकि पिता जिस किसी बात ने हमें पिछले साल रोके रखा अपनी उस मंजिल की ओर बढ़ने से, उसको कुचलते हुए हम आगे बढ़ पाए इस साल. Let your anointing break every yoke that enemy has put upon people. प्रभु, आपका अभिषेक हर एक उस बंधन को, हर एक जुए को तोड़ दे जो दुश्मन ने आपके लोगों पर डाला है. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. आमेन. You all can be seated, please. आप लोग बैठ सकते हैं. So this is the second part of learning to rule and reign. और आज जो मैं शिक्षा दे रहा हूँ, राज्य और प्रभुता करना प्रभु के साथ मिलकर, उसका दूसरा हिस्सा है. Amen. If you were here with us last Sunday, you know that it's God's desire that His children will rule and reign. अगर आप पिछले रविवार हमारे साथ थे तो आपको मालूम है, मैंने सिखाया था, परमेश्वर की इच्छा है, उसकी चाहत है कि उसके बच्चे उसके साथ राज्य और प्रभुता करें. Amen. But ruling and reigning is not a gift. लेकिन राज्य और प्रभुता करना जो है वो एक तोहफा नहीं है. Amen. आमेन. Salvation is a gift. उद्धार एक तोहफा है. But ruling and reigning happens when you enroll yourself for the training. लेकिन राज्य और प्रभुता तब शुरू होती है जब अपने आप को आप प्रशिक्षण के लिए भर्ती कर दो. If you want to rule and reign, अगर आप राज्य और प्रभुता करना you चाहते हो have to become very intentional. तो आपको जानबूझ के इस बात पर ध्यान रखना पड़ेगा. It will not be by accident that you will learn to rule and reign. कि ये गलती से नहीं होगा या अचानक नहीं होगा कि आप सीख जाएंगे कैसे राज्य प्रभुता करते हैं. Amen, church. So let's go to a scripture and then can we all stand up for the reading of the scripture? आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, उसके लिए हम सब खड़े होते हैं. Amen. Let's, the Bible says that God has even exalted His word and given it a higher honor than even His name. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने वचन को इतना ऊंचा स्थान दिया, अपने सारे नामों से ऊंचा स्थान उसने उसको दिया. Amen, church. Are you ready? Revelation 5:10. प्रकाशित वाक्य 5 और उसका 10. And it's talking about God the Father. He has made us kings and priests to our God. और ये बात कर रहा है परमेश्वर पिता ने हमें राजा और याजक बनाया है अपने पिता के लिए. And we shall reign on the earth. और हम पृथ्वी पर राज्य करते हैं. Where shall we reign? कहाँ करना है हमें राज्य? Where shall we reign? कहाँ पर राज्य करना है? On earth. पृथ्वी पर. Amen. So God wants His children, His kings and His priests
to rule and reign on the earth. तो परमेश्वर चाहता है उसकी संतान, उसके बच्चे जो उसने राजा और याजक ठहराए हैं पृथ्वी पर, वो राज्य करें. Amen. So you're not going anywhere. इसलिए कहीं जाना नहीं है. Amen. We're going to rule and reign on the earth. क्योंकि हम राज्य और प्रभुता करेंगे पृथ्वी पर. Hallelujah. Say, I'm going to reign कहीं मैं राज्य करूंगा over every situations that come against us. हर एक परिस्थिति पर जो मेरे विरोध में आती है. See, that's why people think we are a prosperity church. We are not a prosperity church. लोगों को लगता है कि हम लोग समृद्धि का प्रचार करते हैं, समृद्धि की कलीसियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. We just don't want to come under poverty and lack. हम केवल गरीबी और कमी में जीना नहीं चाहते. Amen. People think, oh, we are health and wealth. No. We just don't want sickness to have dominion over us. We want to have dominion over every sickness and every disease. लोगों को लगता है कि हम लोग अच्छी सेहत और समृद्धि का प्रचार करते हैं, लेकिन असलियत यह है कि हम लोग बीमारी को अपने ऊपर प्रभुता करने देना नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि हम राज्य और प्रभुता करें हर एक बीमारी, हर एक रोग के ऊपर. Amen. See, we learned how last Sunday we shared how Adam was created to be the king of entire cosmos. और पिछले रविवार हमने देखा कैसे परमेश्वर ने आदम को सारे ब्रह्मांड, सारी सृष्टि का राजा बनाया. Everything that creeps or moves upon the face of the earth. हर एक जंतु जो रेंगता है पृथ्वी पर, उस पर भी. Every living thing. हर एक जीवित प्राणी पर. Everything that creeps on the face of the earth. हर एक वो बात जो पृथ्वी पर चलती फिरती है. That includes every bacteria and viruses that come against you. और उसमें हर एक बैक्टीरिया और वायरस भी शामिल है जो आपके विरोध में आते हैं. Amen. So Adam had to exercise his absolute dominion. So आदम को अपना वो राज्य, वो प्रभुता इस पृथ्वी पर करनी थी, इस ब्रह्मांड पर करनी थी. Amen. So you can be seated, please, and then let's go to the word. बैठ सकते हैं और हम वचन में चलते हैं. Say, I'm ready. कहे मैं तैयार हूँ. I told you today's word can be more like a surgery. और मैंने कहा था आज का वचन सर्जरी की तरह हो सकता है. But praise God, if the word of God will not push us and challenge us, we will not even be changed. लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, अगर परमेश्वर का वचन हमें आगे ना धकेले हमारी मंजिल की ओर, तो हम लोग बदलेंगे भी नहीं. You know, we, especially with this generation, millennials, us, खासकर हमारी पीढ़ी के साथ, मिलेनियल्स के साथ, हमारे साथ, you know, we focus so much on building our external world. और हमारा सारा ध्यान होता है हमारी जो बाहरी दुनिया है उसको बनाने के लिए. How do people see us? लोग हमें कैसा देखते हैं? How many likes and followers I have on Instagram and Facebook and whatever. कितने लाइक्स और फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर मेरे पास हैं. That's not bad. वो बुरा नहीं है. So what I'm saying is, if you're striving to just make an external appearance that is not true, you're going to miss on your destiny. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपका सारा ध्यान, सारी मेहनत उस नकली छवि पर है जो सच में असल में नहीं है, अगर उसको बनाने में आप सारा ध्यान देंगे तो आपकी जो मंजिल है उसको चूक जाएंगे. Amen. And most of us ignore our internal world. You know, there is a world outside, but there is also a world within. और ज़्यादातर लोग हम में से उस दुनिया को नज़रअंदाज करते हैं जो हमारे भीतर है. कि आप जानते हैं एक दुनिया हमारे बाहर है और एक दुनिया हमारे भीतर है. And Jesus said that the kingdom of God is where? और यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य कहाँ है? In you. तुम्हारे अंदर. The kingdom lifestyle is an inside out lifestyle. राज्य का जो जीवन है वो अंदर से निकलकर बाहर बहने वाला जीवन है. Amen. And we all want to mature, but I also want to talk about main 3 hindrances to our maturity.
और हम सब लोग बढ़ना चाहते हैं, सयाने होना चाहते हैं, परिपक्व होना चाहते हैं, लेकिन 3 मुद्दे हैं, 3 बातें हैं जो रुकावट की तरह काम करती हैं बीच में. You know, yesterday all day, the Lord was just highlighting that scripture where Jesus rebuked the storms. और कल पूरा दिन प्रभु उस आयत को मुझे बार बार याद दिला रहा था जहाँ पर यीशु ने तूफान को डांटा. But you know, he was able to sleep in the midst of storm. लेकिन क्या आप जानते हैं कि तूफान के बीच में वो सो रहा था, सो सकता था? You know why? पता है क्यों? Because there was no storm in him. क्योंकि उसके भीतर कोई तूफान नहीं था. We are trying to calm the storms outside and ignoring the storms in us. जो तूफान बाहर हैं उनको तो हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो तूफान भीतर चल रहे हैं उनको हम देख भी नहीं We रहे. want to go out and cast demons and preach and do blah blah, all the big things. हम लोग बाहर जाना चाहते हैं, सेवकाई करना चाहते हैं, दुष्ट आत्मा को निकालना चाहते हैं, बड़ी बड़ी चीजें करना चाहते हैं. To calm the storms outside. बाहर सारे तूफानों को रोकना है हमें. But you know, the Lord began to teach me that he who learns to rule over and calm the storms that are in him will have the authority to calm the storms outside of him. और लेकिन प्रभु मुझे सिखाने लगा और बात करने लगा कैसे जो ये सीख लेगा कि अपने भीतर चल रहे तूफानों को कैसे शांत करना है, वो ये भी सीख लेगा कि बाहर चलने वाले तूफानों को कैसे शांत करते हैं. Amen. Most of us don't like our own company. हम में से अधिकतर लोगों को अपने साथ रहना पसंद नहीं है. We get bored. हम लोग उकता जाते हैं अपने साथ. Let's go to Matthew 23:25. हम मत्ती 23 उसका 25 देखते हैं. Matthew 23:25. मत्ती 23 उसका 25. When you're there, say amen. जब पहुंच जाए तो आमीन बोल सकते हैं. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you cleanse the outside of the cup and dish, but inside they are full of extortion and self-indulgence. और वो कहता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर असम्य से भरे हुए हैं. Can I speak the truth? क्या मैं सच कह सकता हूँ? We all are hypocrites, हम but सब to लोग different degrees. हम सब लोग अलग अलग मात्रा में ढोंगी हैं. And maturity happens when we lay aside hypocrisy and become genuine before God. और सयाने तब होंगे जब वो ढोंग को परमेश्वर के आगे से हटा करके असलियत में ईमानदारी से उसके सामने आएंगे. When what we are outside and what we are inside, when that is going to sink, your words will have the power to calm every storms. जब वो बातें जो आपके भीतर चलती हैं और वो बातें जो आपके बाहर चलती हैं वो एक हो जाएंगी, एक जैसी दिख जाएंगी, तब आपके पास वो अधिकार होगा कि आप तूफानों को रोक दें. Amen. Jesus is talking about these Pharisees, and one of the hindrances, is hypocrisy. और As long as we are trying to project an image of who we are not, Yeah. we will never be who God wants us to be. और उनमें से एक रुकावट यही है ढोंग करना, क्योंकि जब तक हम एक ऐसी छवि, एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहते रहेंगे जो हम असल में नहीं हैं, तो वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ परमेश्वर लेकर जाना चाहता है. And I'm not saying this, I'm not preaching this to you. I am with you. और ये मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आपको नहीं प्रचार कर रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ इसमें. We all are shedding hypocrisy as we are renewing our mind. हम सब के सब उस ढोंग को अपने आप से अलग करते चले जा रहे हैं जब मसीह की तरह अपने मन को नया कर रहे हैं. तो You know, when you
when you pretend to be somebody whom you are not, how can God bless someone whom you are not? क्योंकि जब आप एक ऐसा व्यक्ति होने का ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं जो आप हैं ही नहीं, तो परमेश्वर उस नकली व्यक्ति को कैसे आशीष दे सकता है जो आप हैं ही नहीं? Amen. If there is a fake arm and you say my arm is paining when it's fake, no matter how much anybody fasts and prays and declares, that arm isn't going to get healed because that's a fake arm. अगर किसी की नकली बाजू है और वो कहे कि मुझे दर्द हो रहा है और कोई उसके लिए प्रार्थना करे, उपवास करे, चाहे कितना भी क्यों ना करे, उसकी बाजू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Amen. And we think that doesn't matter. और हमें लगता है कि इस सबसे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है. That matters the most. इस सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है. Your intentions which nobody hears but God hears. आपकी वो अंदर चलने वाली बातें, आपके इरादे जो और कोई नहीं सुनता लेकिन परमेश्वर सुनता है. And again, Lord was telling me this, that he who learns to govern himself will be given authority to govern nations. और बार बार प्रभु मुझसे ये बात कह रहा था कि वो व्यक्ति जो अपने आप का नियंत्रण करना सीख लेगा, अपने आप को सही से चलाना सीख लेगा, उसको अधिकार दिया जाएगा देशों को चलाने का. We all want to go to nations, we want to build businesses, we want to build ministry, we want to do all of that. हम सब लोग विश्व भर में जाना चाहते हैं, अलग अलग देशों में जाना चाहते हैं, सेवकाइयाँ बढ़ाना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, बड़े बड़े सब करना चाहते हैं. We want to conquer nations. हम लोग देशों पर जय पाना चाहते हैं. But we don't want to conquer our heart. We don't want to conquer our soul. लेकिन अपने दिल पर जय पाना नहीं चाहते, अपने प्राण पर जय पाना नहीं चाहते. No amount of success outside will give you joy. चाहे कितने भी सफल आप क्यों ना हो जाए दुनिया में, लेकिन उस सब से वो खुशी नहीं मिलेगी. If in your heart you are not who God called you to be. अगर अपने हृदय में आप वो व्यक्ति नहीं हैं जो होने के लिए आपको परमेश्वर ने बुलाया, बनाया. You know, one time I was asking the Lord, I said, Lord, I want to see more miracles in the ministry. What should I do? और एक दिन मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु मैं सेवकाई में और चमत्कार देखना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? You know, I was expecting he would say something deep. You know, we want deep things. और मैं उम्मीद कर रहा था परमेश्वर कुछ गहरी बात कहेंगे, क्योंकि हम सब कुछ ना कुछ गहरा सुनना चाहते हैं प्रभु से. Maybe fast for 7 days and do these declarations for 200 times, and maybe go to Israel and then take the olive oil and pour it on a shofar and then pour it on your head, something like that. कि शायद प्रभु बोलेगा 7 बार उपवास कर, या 7 दिन उपवास कर, या फिर 200 बार ये घोषणाएं कर, या इजराइल जा, वहाँ का अभिषेक तेल लेकर के उसको शोफार में डाल करके अपने सर पर उंडेल, या कुछ ऐसा कुछ खतरनाक सा होगा. And he said something that was so simple, so simple. और प्रभु ने कुछ ऐसा कहा जो इतना साधारण है that it doesn't seem right. और वो इतना ज़्यादा साधारण है कि वो बिल्कुल सही नहीं लगता सुनने में. He said, उसने कहा, just mean what you say. उसने कहा जो कहते हो दिल से कहो. Just mean what you say. You know, that's the problem with us. और यही हमारी दिक्कत है. Much of what we say, we don't mean it. अक्सर जो कुछ हम कहते हैं हम वो दिल से नहीं कहते. And can I say something? Every time when you say something and you don't mean it, in the spirit realm, your authority decreases. और अगर मैं सच कहूँ तो जितनी बार हम कुछ ऐसा कहते हैं जो हमारे दिल से हम नहीं कह रहे, या हमारे दिल में हम कुछ और कहते हैं, मुंह से कुछ और कहते हैं, आत्मिक दुनिया में हमारा अधिकार कम होता है. You know why Jesus could say, Lazarus, come forth, and a man who is dead for 4 days came out, and the Bible says, as he is, so are we. Then where is this gap? Why are we not walking like him? और पता है जब यीशु कहते हैं कि लाजर बाहर आ जा, और वो व्यक्ति जो 4 दिन से मरा हुआ था बाहर आ जाता है, और बाइबल कहती है जैसा मसीह यीशु है वैसे ही हम भी इस दुनिया में हैं, तो फिर इतना अंतर क्यों है, कहाँ से है?
Because his eyes, his heart and his mouth were in perfect alignment. क्योंकि उसकी आंखें, उसका मुंह और उसका हृदय एक समान देखते और बोलते थे। We see something else, हम देखते कुछ और we हैं, believe something else, मानते कुछ और हैं and we speak something else. और बोलते कुछ और हैं। Isn't that true? ये सच नहीं क्या? How many of us can live like that if God starts to display our thoughts on this LED? We'll still be sitting here. हम में से कितने लोग ऐसा जीवन जी सकते हैं कि परमेश्वर अगर हमारे सारे विचारों को इस एलईडी वॉल पर दिखाने लग गए, फिर भी हम यहाँ बैठे रहेंगे? Okay, no way I'm trying to condemn anyone. I'm Next. telling you this is for me. मैं ये सब दोष लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये मेरे लिए है। This is just what I was thinking all day yesterday. I want to share with you. कल पूरा दिन मैं यही सोच रहा था और वही बता रहा हूँ। We are so busy trying to create an image that doesn't even matter in the kingdom. हम सब लोग इतना व्यस्त हैं एक ऐसी छवि बनाने में जिसकी कोई कीमत ही नहीं है राज्य के लिए। Silence. Wow. You know, can I freely talk? क्या मैं आज़ादी से बात कर सकता हूँ? You know, if you compare about King David and King Saul, अगर आप राजा दाऊद और राजा शाऊल में फ़र्क करेंगे, both anointed by God दोनों को to be king परमेश्वर of Israel. दोनों को परमेश्वर की ओर से अभिषेक किया गया इजराइल का राजा होने के लिए। David committed a much wicked sin than Saul. और दाऊद ने शाऊल से कई ज़्यादा घिनौना अपराध किया। Killed a man, took his wife. एक व्यक्ति को मरवा दिया साजिश से, उसकी पत्नी को ले लिया। What did Saul do? और शाऊल ने क्या किया था? He just did what God had ordained priests to do. शाऊल ने वो किया था जो करने के लिए परमेश्वर ने याजक को रखा था। But then the Bible says God rejected Saul, and to David, the word says, God says he's a man after my own heart. It's very confusing. और लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने शाऊल को तो ठुकरा दिया और दाऊद के लिए ऐसा कहा कि ये मेरे मन के मुताबिक मनुष्य है। Because many times we think it's about a bad event or a bad action that anybody does in the kingdom. क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि किसी ने अगर कुछ भयंकर गलती कर दी तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है राज्य के लिए। Or do you know he went there and he was caught drinking? Or do you know he has an affair going on? Now those are bad things. Don't do them. जैसे कि अरे वो शराब पीते हुए पकड़ा गया या फिर उसका किसी के साथ गलत अफेयर चल रहा है, हाँ ये गलत है, आपको नुकसान होगा, इस सबसे मत करें। But more than those events, God is interested in your heart's attitude. लेकिन उन घटनाओं से कई ज़्यादा बढ़कर परमेश्वर का ध्यान है आपकी मानसिकता पर, आपके सोचने नजरिए पर। And God sends two prophets to both these kings. और परमेश्वर दोनों राजाओं के पास दो अलग अलग भविष्यद्वक्ताओं को भेजता है। Samuel goes to King Saul शामुएल भविष्यद्वक्ता जो है वो राजा शाऊल के पास जाता है and he says, God has rejected you. और वो शाऊल राजा से कहता है कि परमेश्वर ने तुझे ठुकरा दिया है। And I get so shocked और मैं reading the response of King Saul. और मैं बहुत ही हैरान हो जाता हूँ सौल राजा का जवाब पढ़कर। He tells Samuel, that's okay, but honor me before men and don't let anybody know that God has rejected me. जब शामुएल उससे कहता है परमेश्वर ने तुझे ठुकरा दिया, तो वो कहता है कोई बात नहीं, परमेश्वर ने ठुकरा दिया चलेगा, लेकिन लोगों के सामने मेरा आदर करना और ये जाहिर मत होने देना कि परमेश्वर ने मुझे ठुकरा दिया है। Pharisees had the same problem. Jesus said, you seek honor from men. फरीसियों की भी यही दिक्कत थी। यीशु ने कहा कि तुम मनुष्यों से आदर चाहते हो। And God sends Nathan to David, and Nathan tells him that he has committed sin, and the Bible says David prostrates before the Lord and says, I have sinned. और बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने नेथन को डेविड के पास भेजा
जैसे ही डेविड ने अपनी गलती को सुना, वो मुंह के बल लेट गया जमीन पर और परमेश्वर से माफी मांगने लगा कि मैंने गलती David कर दी। wasn't so concerned about his reputation before people. David was concerned about what his father thought of him. दाऊद को इस बात की चिंता नहीं थी कि लोग क्या सोचेंगे कि राजा होने के बावजूद वो जमीन पर मुंह के बल लेट रहा है, लेकिन उसको परवाह थी उसका पिता उसके बारे में क्या सोचता है। When we build our life, all that what will people say about me, or I want to become something so that people can say this about me, or this guy drives this car, this guy lives in this kind of house, oh this guy is this. If all our life's effort is to get praises from men, then we have not understood the kingdom. अगर हमारा पूरा जीवन इस बात पर बना हुआ है, इसके हिसाब से हमने इसको बनाया कि लोग हमारे बारे में अच्छी बातें कहें कि ये व्यक्ति ऐसे घर में रहता है, ऐसी गाड़ी चलाता है, और लोगों की तारीफों के लिए अगर हम अपनी जिंदगी को बनाने में जुड़े हैं, तो आज तक हम राज्य को नहीं जानते, ना ही समझे हैं। There's a lady, Anna Roundtree. एक स्त्री है I was reading her book. She had many heavenly visitations. एना राउंट्री नाम है उनका, और बहुत सारे स्वर्ग के साक्षात्कार उनके हुए अपने जीवन So में। one time the Lord took her to heaven, and in heaven she was in this beach. और एक बार परमेश्वर उनको स्वर्ग में लेकर के गए और वहां पर वो एक बीच पर गई, समुद्र के तट And पर she गई। saw a little girl making sand castles there. और उन्होंने एक छोटी बच्ची को देखा वहां पर, वो समुद्र तट पर रेत के घर बना रही थी। And Anna wanted to meet Jesus. और एना राउंट्री जो है वो यीशु को मिलना चाहती She थी, said, I want to meet Jesus. और उन्होंने कहा मैं यीशु को मिलना चाहती हूँ। But this kid said, no, you have to first make sand castles here. लेकिन उस बच्ची ने कहा नहीं, पहले आओ मेरे साथ रेत के घर बनाओ। And then that girl said something that's so powerful, and it has stayed with me. That girl said, oh, but you love making sand castles on the earth. और जब उन्होंने कहा नहीं मुझे यीशु से मिलना है, तो एना राउंट्री को उस छोटी बच्ची ने कहा लेकिन तुम्हें तो बहुत प्यार है रेत के घर बनाने से पृथ्वी पर, Because that's what you've been doing all your life on the earth. क्योंकि जिंदगी भर तुम यही करती आई हो पृथ्वी पर। Trying to build a ministry, trying to build an image, trying to build a reputation that is like sand castles in the perspective of eternity. एक बढ़िया सेवकाई हो, अच्छा नाम हो, इज्जत हो लोगों के सामने, और ये सब उन रेत के मकानों की तरह है जो थोड़े समय के लिए हैं उस अनंत की तुलना में। Now please don't misunderstand me. I'm not saying delete your Instagram account. मुझे गलत ना समझे, मैं ये नहीं कह रहा इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट। I'm not saying wear good clothes. I'm not saying that. मैं ये नहीं कह रहा अच्छे कपड़े मत डालो, ये सब I'm नहीं कह saying your life is much more than this. रहा। मैं ये कह रहा हूँ आपकी जिंदगी, आपका जीवन इस सब से कई ज्यादा बड़ा है। Your external is a very small part of who you really are. आपका बाहरी जीवन जो है वो बहुत ही छोटा सा अंश है असलियत में जो आप अंदर हैं उसका। Do you know icebergs? Icebergs? Only 5% is visible, rest 95% is under the sea. That's how we are. What people see from external is just 5%. God is interested in that 95% which nobody sees. अगर आप उन बर्फ के पहाड़ों को जानते हैं जो समुद्र में डूबे होते हैं, केवल उसका 5%, केवल उसकी ऊपर की चोटी जो है वो बाहर नजर आती है, लेकिन 95% वो पहाड़ बर्फ का पहाड़ पानी के अंदर होता है। वैसे ही हम भी हैं, जो लोग हमें बाहर से जानते हैं केवल 5% जानते हैं। परमेश्वर हमारी पूरी बनावट को अच्छी तरह जानता है, और इसीलिए उसका पूरा ध्यान हमारी उस संपूर्ण बनावट पर है, इस 5% पर नहीं। Heaven doesn't know your image or doesn't know our image that we project. Heaven knows us who we are. स्वर्ग हमारी उस छवि को नहीं जानता जो हम दिखाना चाहते हैं या जिसको लेकर के हम घूमते हैं। स्वर्ग हमारी वो तस्वीर, वो छवि जानता है जो असलियत में हम हैं। Bible talks, King Herod adorned, sat on his throne, and people are praising him. Man, he's like God. Angel says, "Hut," gives him a slap and he dies. और बाइबल बताती है राजा हेरोद अपने सिंहासन पर बैठता है सज सवर कर, और उसकी आराधना करने लगते हैं लोग कि ये तो ईश्वर है, ये तो ईश्वर है, और उसके साथ जो स्वर्गदूत खड़ा था वो उसको थप्पड़ मारकर गिरा देता है और उसी समय वो मर जाता है। Everything famous is not great in the kingdom, and everything great doesn't have to be famous. हर एक महान बात राज्य में लोकप्रिय नहीं है, बहुत से लोग नहीं जानते उसको, और हर एक लोकप्रिय बात राज्य में महान नहीं है।
Maybe the prayers you do in your secret room, nobody sees them. But Jesus said, whatever you do in secret, your Father is going to reward you openly. जो प्रार्थनाएं, जो बातें आप पिता से अकेले में करते हैं, शायद कोई और ना जानता हो, लेकिन यीशु ने कहा तुम्हारा पिता जो तुम्हें अकेले में सुनता है, सबके सामने आशीष देगा. Can I say a scripture which put it on your walls? Because this scripture is so powerful and so true if you want to mature. मैं एक आयत बता रहा हूँ, उसको जा कर के घर पर दीवार पर लिख लेना, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है और बहुत सच है अगर आप परमेश्वर में सयाने होना चाहते हैं तो. Luke 8:17. लूका 8 उसका 17. Luke 8:17. Are you still excited as surgery is going on? अभी भी उत्साहित हैं? Luke 8:17. For nothing is secret that will not be revealed. कुछ भी छिपा नहीं जो प्रकट ना हो. Can I say it again? For nothing is secret that will not be revealed. ऐसा कोई भी रहस्य नहीं है जो खोला ना जाएगा. The intentions of your heart, what you think about people, what you release in their lives, nothing that is secret that shall not be revealed. अपने दिल के इरादे, जो बातें आप लोगों के बारे में कहते हैं, कुछ भी जो आपके अंदर चलता है, ऐसा कुछ भी रहस्य नहीं जो खोला ना जाएगा. Nor anything hidden that will not be known and come to light. ना ही कुछ ऐसा गुप्त है जो छुपा रहेगा और रोशनी में प्रकट ना होगा या जाना ना जाएगा. Amen. Whatever you have done, जो कुछ आपने किया है, whatever you have done, nothing that is secret that shall not be revealed. चाहे कुछ भी आपने क्यों ना किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं जो रहस्य था और रहस्य रह जाएगा. सब कुछ सामने आएगा. You have prayed for somebody, shed a tear. किसी के लिए प्रार्थना की, आंसू बहाया है, You have cursed somebody. किसी को श्राप दिया है, Everything will be revealed one day. एक दिन सब कुछ साफ होगा. Amen. And I think the first hindrance to maturity is getting rid of hypocrisy. और सबसे पहली और सबसे बड़ी रुकावट मैं कहूँगा जो सयाना होने से रोकती है, वो है ढोंग करना. Can I say this? And I have been saying this. If you guys have been following us or hearing the messages, I've been saying this, that for last 14 years, I have not seen a hypocrite blessed. और मैं ये बात बहुत समय से कहता आया हूँ, अगर आप हमें फॉलो करते हैं कुछ समय से तो आपने सुनी होगी. मैं पिछले 14 साल से इस बात को देख रहा हूँ, मैंने कभी भी ढोंगियों को आशीषित नहीं पाया. They can pretend they are blessed by buying something which they can't afford. वो नाटक But कर that's सकते not हैं, blessing. वो नाटक कर सकते हैं आशीषित होने का, कुछ ऐसा खरीद करके जिसकी जो उनके आपे से बाहर है, लेकिन ये आशीष होना नहीं है. And in the same way, I have not seen a genuine person not blessed in the kingdom. और वैसे ही मैंने एक ईमानदार व्यक्ति को, एक जेन्युइन व्यक्ति को राज्य में आशीषित होते हुए, आशीषित ना होते हुए नहीं देखा. Now I'm not saying that if you're going through a financial lack, you're a hypocrite. Please understand. मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर कोई आर्थिक तंगी से गुजर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप ढोंगी हैं. Me and Monu went through financial lack for a long time. मैं और मोनू एक आर्थिक तंगी से बहुत लंबे समय तक गुजरे. What I'm saying is, I'm talking about people, 30 years they have been with God. 30 years, nothing. If you are genuine, it is like you are standing under a waterfall. And if you're not getting wet, there is some issue. और मैं बात कर रहा हूँ जो लोग 30 साल से प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रभु के साथ बढ़ रहे हैं, अगर आप झरने के नीचे खड़े हैं और भीग नहीं रहे तो कुछ दिक्कत है. Amen. So first thing, if you want to mature, इसलिए पहली बात, अगर आप सयाने होना चाहते हैं राजा, you know, it's amazing. You can
get 9 gifts of the Holy Spirit, you can prophesy, you can do all of those things, but if you don't work on your character, you cannot contain that power. आप चाहें तो आप पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में चल सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर चरित्र में सयाने नहीं होंगे, अगर चरित्र पर काम नहीं करेंगे, तो वो जो आप जिसमें आप चल रहे हैं उसको संभाल नहीं पाएंगे ज़्यादा समय. Amen, church? So let's ask the help from the Holy Spirit that we'll genuinely be who we are. इसलिए पवित्र आत्मा से मदद मांगे कि सच में जो हम हैं वैसे हो जाएं. I've shared before that, we used to have prayer meetings, Sam would remember. So all-night prayer meetings, and we used to sit in circles, and a topic would be given to each and every person. और हम लोग ऐसे रात भर प्रार्थनाओं में जाया करते थे, जहाँ पर हम लोग एक सर्कल में बैठते और हर एक को एक विषय दिया जाता, प्रार्थना करने के लिए मुद्दा दिया जाता. There's a problem with this flesh. It wiggles. It wants to be seen. Right? और शरीर की समस्या यह है कि शरीर चाहता है कि मुझ पर रोशनी पड़े, मैं दिखाया जाऊं, मैं लोग जाने में कितना अच्छा हूं. So they are giving a topic, and I've shared it before, I know that, but let me share it again. और मैंने पहले बताया, मैं जानता हूं, लेकिन दोबारा कहूँगा. एक विषय दिया गया. Different topics are given, and I'm not hearing the prayer, not saying amen, because I have to collect the most spiritual words, the most big words, because I want to impress everyone in that prayer group. और प्रार्थना शुरू हो गई है, पूरे सर्कल में प्रार्थना चल रही है, लेकिन मैं किसी की प्रार्थना सुन नहीं रहा हूँ, ना ही आमीन कह रहा हूँ मन से, क्योंकि मैं अपने अंदर वो सारी बड़े बड़े भारी भारी आत्मिक शब्द बटोरने में जुड़ा हूँ, जिससे मैं सबको इम्प्रेस कर पाऊँ, खुश कर पाऊँ. Isn't that social media has become all about? सोशल मीडिया यही सब बन चुका है. And I have now, okay, I'm going to speak this verse, and I'm going to say God Almighty, the Maker, the Creator, El Shaddai, Elohim, I'm rehearsing that prayer so that when they come near me, I'm going to say such a prayer that they're going to say, wow, अगर कोई spiritual है यहाँ पे तो वो अंकित है. और जब मेरी बारी आने वाली है तो उससे पहले मैंने सारे भारी भरकम शब्द बटोर लिए हैं कि सर्वशक्तिमान पिता जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की है, एलोहीम, एल शडाई, वो सारे शब्द मैंने जमा कर लिए कि जब मैं प्रार्थना करूँ तो लोग बोले यहाँ पर अगर कोई आत्मिक है तो ये बंदा है. And you know what? I was not even praying to God. I was praying to these guys. और असलियत तो ये कि मैं परमेश्वर से भी प्रार्थना कर ही नहीं रहा था, मैं इन लोगों से प्रार्थना कर रहा था. But then this guy next to me said all the verses that I had thought. लेकिन मेरे बगल में जो इंसान बैठा था उसने वो सारी आयतें बोल दी जो मैंने सोची थी मैं बोलूँगा. What should I do? अब मैं क्या करूँगा? Part of the maturity is not only what comes out of your mouth. Part of maturity is also when you stop yourself to not say when God says don't say. और सयाना होना केवल यही नहीं कि हम क्या बोलते हैं, लेकिन सयाना होना ये भी है जब हम अपने आप को रोक देते हैं कुछ भी बोलने से, क्योंकि प्रभु कहता है कि कुछ मत बोल. We were going to a ministry trip. There were 2 pastors sitting in the front of the car. I was on the back seat, and they were talking about some Bible verses, and they were saying a verse, and I knew the address. They were saying it, and in my heart I would say Matthew 27:25, and then they would say something, I would say Leviticus something, something, and then they got stuck somewhere, and I was like, whoa man, I know this, and I wanted to say it, and Holy Spirit said, shut up, don't say. And I was like, Lord, that is the best platform that these pastors would know that I know Bible more than them. He said, shut up. और हम लोग एक मिनिस्ट्री की ट्रिप में जा रहे थे, गाड़ी में आगे 2 पास्टर्स बैठे थे, मैं पीछे की सीट पे बैठा था, वो लोग बात कर रहे थे, और जब वो बाइबल के वर्सेस आपस में बात कर रहे थे तो मेरे अंदर उस वर्स का एड्रेस आ रहा था. जैसे वो कुछ कह रहे थे तो मैं कहता मत्ती 27 उसका 25 ले व्यवस्था में यहाँ लिखा है. तो एक जगह करते करते वो एक ऐसे वर्स पर आए जो दोनों को
पूरा नहीं पता था या कहाँ लिखा है नहीं पता था, और मुझे पता था, तो मैं बोलना चाहता था और बोलने ही वाला था। पवित्र आत्मा ने कहा चुप करके बैठ, और मैंने कहा प्रभु ये सबसे अच्छा मौका है जब मैं दिखा सकता हूँ मुझे इन लोगों से ज़्यादा बाइबल आती है, और प्रभु ने कहा चुप रहे। Sometimes the hindrance to our learning is not that we don't know, but we know too much. और कई बार समस्या ये होती है हमारी बढ़ोतरी में, हमारी उन्नति में, ये नहीं कि हमें कम पता है, लेकिन ये कि हमें बहुत ज़्यादा पता है। You know, I would go to these meetings and this man of God would preach something and I would say, अरे तो आता है अपने को. We all have this attitude. Isn't that true? And then God had to train me and teach me. Maturity always starts with humility. और मैं कहीं जाता और प्रभु के कोई जन प्रचार कर रहे होते हैं, अपने दिल में बोलता अरे ये तो मुझे आता है, अरे ये तो मुझे पता है, ये तो मैं जानता हूँ। और हम सब यही करते हैं, लेकिन सच में सयाना होना शुरू होता है जब हम नम्र होना सीखते हैं। You know, when I got saved, Sam knows, I was super jealous for the Lord. I still am, but not as I was before. जब मैंने उद्धार पाया था तो मैं प्रभु के लिए बहुत ज़्यादा जलन रखता था, आज भी रखता हूँ, लेकिन उतना नहीं जितना तब था जब मैंने नया जन्म No, पाया। I mean like the zeal is there, but now it's with godly understanding. लेकिन वो जलन अब परमेश्वर की बुद्धि के साथ है, पहले नहीं थी। And I went to a church, और मैं कलीसिया में गया and pastor called some guy. और पास्टर ने किसी व्यक्ति को That was the बुलाया। time I was leading worship, going to places, preaching the gospel, doing all this, and was invited to become a pastor in a church. और वो समय था जब मैं अलग अलग जगह पे सेवकाई करने जा रहा था, आराधना लीड किया करता था, मैं जा कर के चिन्ह चमत्कार हो रहे थे मेरी ज़िंदगी में, और मैं एक चर्च का पासवान बनने के लिए मुझे इनवाइट कर लिया गया था। इस सब के चलते मैं एक कलीसिया में गया जहाँ पर पास्टर ने किसी व्यक्ति को प्रार्थना के लिए बुलाया। And sometime you come, even Sam will share with you, you know, we always had supernatural signs and wonders from the beginning, you know, casting out demons and gold dust and all these things were happening. All of that was happening. Supernatural manifestation was there. और शुरुआत से हमने ये देखा कि कैसे परमेश्वर अलौकिक चीज़ें हमारे साथ करता गया, दुष्ट आत्माओं को निकालना, गोल्ड डस्ट, अलग अलग चिन्ह चमत्कार हमारे साथ होते रहे। And I was sitting, and this pastor calls this guy, and he comes up, and pastor says to read a verse from Isaiah, and he says in a very feeble voice, and you know, this arrogance within me started to judge this guy and saying, man, if only the pastor would have called me. और पासवान ने इस व्यक्ति को बुलाया और कहा कि बाइबल में से ये वर्स पढ़ दो, और जब वो पढ़ रहे थे बहुत ही कमज़ोर लड़खड़ाती सी आवाज़ में, तो मेरे अंदर से उस घमंड ने उस व्यक्ति को देखा और कहा कि अगर इसकी जगह मुझे बुलाया Only if the होता, pastor would have called me, I would have said, thus says the Lord of heaven and the earth. अगर पासवान ने मुझे बुलाया होता तो मैं कहता यहोवा की यह वाणी है। And was I saying it loud? क्या मैं ये बात जोर से कह रहा था? I was नहीं, saying in my heart. मैं अपने दिल में कह रहा था ये बात, But he was hearing it. लेकिन वो सुन रहा था उस बात को। And instantly he spoke to me and he said, that's why he's standing there and you are sitting there, because you trust in yourself. और उसी समय प्रभु ने मुझसे बात की और कहा इसीलिए तू यहाँ बैठा है और वो वहाँ खड़ा है क्योंकि तू अपने ऊपर भरोसा It करता was है। like somebody pounded my chest with 1,000 kilogram of hammer. और वो ऐसा था जैसे किसी ने 1000 किलो का हथौड़ा मेरी छाती में मार And दिया, I saw pride in my heart. और मैंने अपने दिल में घमंड को देखा। I said, I don't want to do ministry मैंने कहा मैं सेवकाई नहीं करना चाहता until I change the attitude of my जब heart. तक मेरी ये मानसिकता, ये सोच ना बदल जाए। I stopped leading worship for some time. I just, मैंने आराधना लीड करना बंद कर दिया कुछ समय के लिए। and I thought, Lord, I don't know anything. मैंने कहा प्रभु कुछ नहीं आता मुझे। I still feel the same. आज भी ऐसा लगता है। Anyway, so, and then I decided I'm not going to go into the ministry, but then God set us up. And और this happened. तब मैंने निर्णय लिया कि मैं सेवकाई में नहीं जाऊंगा। उसके बाद
प्रभु ने हमें किसी तरह से कलीसिया में ले आए और ये सब हुआ. If you remember one teaching I told you about Huspa, how to receive a word. That's why every time I'll go to some other church and some pastor is preaching, I would quickly judge the attitude of my heart. और मैंने आपको सिखाया था कैसे वचन ग्रहण करना है. ह्यूस्पा के बारे में मैंने बताया था. और इसीलिए जब कभी मैं किसी और कलीसिया किसी सभा में जाऊं जहां पर कोई पासवान प्रचार कर रहे हैं तो जल्दी से मैं अपने हृदय की दशा का, अपने दिल की हालत को मैं न्याय करता हूं और देखता हूं, परखता हूं मेरा दिल कैसा है ग्रहण करने के लिए. You know, many times we don't understand. Faith is a great confidence, but faith is not arrogance. और कई बार हम लोग नहीं समझते विश्वास एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है लेकिन वो घमंड नहीं है. Amen. So first hindrance was hypocrisy. So पहली जो दिक्कत थी वो थी ढोंग. Okay. And I know it is not going to go in one prayer, in one fast. The more you renew your mind, the more we become kingdom minded, the more we don't want to create this facade outside which. और मैं जानता हूँ कि जितना ज़्यादा हम ये बाहरी ढोंग, बाहरी नाटक, बाहरी नकली छवि बनाने में जुड़े रहेंगे. See, think about this. For example, I download an image of a very muscular model, for example. उदाहरण के लिए अगर मैंने एक बहुत मस्कुलर दिखने वाले मॉडल की फोटो डाउनलोड कर 6 packs, 8, 16, whatever. उसके 6, 8, 16 पैक पूरे शरीर पे पैक बने हुए हैं. Okay. And I make an Instagram account of it. और मैं उसका एक Instagram अकाउंट बना लूँ. And I start downloading videos and start posting, and bam, 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 my page is growing. But still I would know that it's not me. It's not me. It's this guy. और मैं उस व्यक्ति के वीडियोस डाउनलोड करके डालता रहूँ उस प्रोफाइल से और व्यूज़ मिलते रहे, फॉलोअर्स बढ़ते, लेकिन असलियत मुझे पता है कि मैं नहीं हूँ, ये व्यक्ति कोई और है. I'm seeing the faces, you know. आपके खुशहाल चेहरों को मैं देख रहा हूँ. Some people are like, what is he sharing? क्या सिखा रहे हैं? The real walk with Christ is learning to govern ourselves. और सच में अगर मसीह के साथ चलना सीखना है तो वो ये सीखना है कि अपने जीवन पर नियंत्रण कैसे करना है, अपने आप को कैसे सही तरीके से चलाना है. Many times we think it's all about, oh, I have saved 500 souls. I have saved 200 souls. I have gone to this many cities doing gospel, blah, blah. Amazing. Amazing. कई बार हमें लगता है कि मैंने 200 आत्माएं बचा ली, मैंने 500 आत्माएं बचा ली, मैंने इस शहर में सेवकाई कर ली, उस शहर में सेवकाई. Oh, I've been serving the Lord for 15 years, for 20 years. I want to ask you this question, that the jealousy you had 15 years ago, is that jealousy still ruling you 15 years after? Or have you overcome that jealousy? That bitterness you had in your heart 15 years ago, is that bitterness still in your heart after 15 years walking with Christ? और हम सोचते हैं मैंने 15 साल सेवकाई कर ली, 20 साल सेवकाई कर ली, लेकिन मेरा ये सवाल है कि वो 15 साल पहले जो ईर्ष्या थी आपके हृदय में, क्या आज भी आपके हृदय पर वो राज करती है? वो कड़वाहट थी, वो बुरी भावना थी जो दूसरों के लिए अपने दिल में, क्या आज भी आपके दिल में वो पाई जाती है? Or have we really walked with the Lord? Can I say this, church? We can make this big facade, you know. This facade without Lord, this is a facade. This LED, this lights, this can be super fake. This doesn't mean we are walking with the Lord. और सच में अगर हम प्रभु के साथ नहीं चल रहे हैं, तो अगर प्रभु के साथ नहीं चले हैं, पूरा बड़ा ढोंग कर सकते हैं हम, बहुत बड़ी सेवकाई, बहुत बड़ी लाइटें, बहुत कुछ दिखने में अच्छा होगा, लेकिन वो सब नकली होगा. This is not walking with the Lord. ये सब प्रभु के साथ चलना नहीं है. Who are we when nobody watches us? कौन है हम असल में जब कोई नहीं देखता?
What thoughts arise in our heart when nobody hears them? क्या विचार हमारे दिल में सुनाई देते हैं जिनको कोई और नहीं सुन पाता? When you see somebody getting blessed, what comes out from your heart? जब आप देखते हैं कि कोई और आशीषित हो रहा है तो आपके दिल से क्या निकलता है? God is so interested in that. परमेश्वर उस सब में इतना ज़्यादा रुचि रखता है, Rather than we have done 25 cities in 1 year. And that is good, guys. I'm not against that. इससे कई ज़्यादा कि हमने एक साल में 25 शहरों में सेवकाई की। हाँ, वो सब अच्छा है, प्रभु का धन्यवाद हो। But if we are really walking with the Lord, लेकिन अगर सच में हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, then our lives should be a lifestyle of an overcomer. तो हमारी जिंदगी एक जय पाने वाली जिंदगी होनी चाहिए जिसमें हम हर एक बात पर जय पाते हैं। When I came to the Lord, I was a smoker. I was a chain smoker. जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया तो मैं सिगरेट पिया करता था और एक के बाद एक पिया करता था। Fasted, read the word. I was not able to leave it. उपवास किया, प्रार्थना की, वचन पढ़ा, पर नहीं छूट रही थी। Went to different men of God. They laid their hands on me, prayed. Nothing happened. प्रभु के अलग अलग लोगों के पास गया, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ। But I had made a decision. लेकिन मैंने ये ठान लिया था I'm going to overcome this habit. कि मैं इस बुरी लत को हरा के This रहूंगा, habit will not rule me. कि ये बुरी लत मेरी जिंदगी पे राज नहीं करेगी। What is overcoming us today? क्या वो बातें हैं जो आज हम पर राज कर रही हैं? And what is your attitude about those things? और आपकी क्या मानसिकता है उन बातों के लिए? Let's go to this scripture. आइए हम एक आयत देखते हैं। Oh, बहुत सन्नाटा है यहाँ पे. Hallelujah. Proverbs 16:32. नीति वचन 16 उसका 32। Proverbs 16:32. Let me tell you, you can be even greater than the one who has conquered nations. और मैं आपको बता दूं कि आप उससे महान हो सकते हैं जिसने देशों पर राज कर लिया हो। He who is slow to anger is better than the mighty. विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में करना नगर को जीतने से उत्तम है। And he who rules his spirit, can I say it again? He who rules his spirit is mightier than he who takes a city. वो जो अपने मन को वश में रखता है नगर को जीतने वाले से बढ़कर है, उत्तम है। Come on. He who rules his own spirit. वो जो अपने खुद के हृदय पर राज करता है। We decide what will stay in our heart. हमारी मर्जी है कि हमारे दिल में क्या चलेगा। And I'm not saying that maybe you will not be set free, maybe you will not be victorious one day, but if you will have that overcoming mentality, you will overcome that. और हो सकता है कि एक दिन में वो जो आपके दिल में चल रहा है, एक दिन में उसको ना हरा पाएं, एक दिन में उस पर काबू ना पा लें, लेकिन अगर ये मानसिकता रखेंगे जय पाने की कि मुझे इसको हराना ही है, तो निश्चय ही हरा पाएंगे। Amen, church? That's why we never condemn anybody who comes and says, Bhaiya, I smoke, we drink, I watch porn, whatever that is. That cannot hold you down if you really start walking in your true identity. इसीलिए हमने कभी किसी पे दोष नहीं लगाया जिसने भी आके कहा कि भैया मैं सिगरेट पीता हूँ या मैं शराब पीता हूँ या मैं पोर्नोग्राफी देखता हूँ, क्योंकि अगर आपने ये मानसिकता बना ली कि मुझे इसको हराना है तो ऐसा असंभव है कि आप उसको ना हराएं। Amen, church? I want to ask you this question. What is that thing that is having dominion over you? तो मेरा आपसे ये सवाल है, क्या है वो बातें आपकी जिंदगी में जो आप पर राज करती हैं? I miserably fail in this scripture. It says, he who is slow to anger is greater than the mighty. I want to be a mighty warrior of the Lord, but I'm not so good with controlling my temper. और मैं बहुत निराशा से हार जाता हूँ इस आयत में जब वचन कहता है कि जो अपने क्रोध पर
नियंत्रण रख सकता है वो वीर से बढ़कर है, क्योंकि मैं वीर तो होना चाहता हूँ लेकिन अपने गुस्से पर इतना आसानी से We काबू want to नहीं be पाता। mighty warriors for the Lord, but we don't want to manage our hearts. हम लोग प्रभु के लिए तो वीर बनना चाहते हैं लेकिन अपने दिल को वश में करना नहीं चाहते। Guys, are you still alive? जीवित हैं अभी भी? So much focus on external. क्योंकि सारा ध्यान जो बाहर चल रहा है उस पर है। You know, I was telling Monu one day that I want to do a different kind of fast. मैं एक दिन मोनू से कह रहा था मैं एक अलग तरीके का फास्ट करना चाहता I हूँ। want to do a fast one day where I will not speak to anyone. मैं एक दिन का उपवास करना चाहता हूँ जहाँ पर मैं किसी से एक शब्द भी नहीं कहूँगा। You know why? पता है क्यों? Because when you stay quiet and not say anything, your heart will start speaking loud. क्योंकि जब आप चुप रहेंगे और किसी से कुछ नहीं कहेंगे तो आपका दिल बहुत जोर से बोलने लगेगा And you would really know what's going on inside. और आपको तब असल में पता लगेगा कि आपके दिल के अंदर चलता क्या क्या है। Many times because of the noise of the external and so much that is happening on the external, we don't even know what's happening in us. क्योंकि इतनी बार बाहर कितना कुछ चल रहा है, इतना हल्ला है दुनिया में, इतना कुछ हो रहा है तो हमें पता भी नहीं हमारे अंदर क्या है। Okay? Guys, so this word is not to condemn you. इसीलिए जो वचन मैं आपको This दे रहा word, हूँ, I am preaching it to me first. I am accountable to what I share. ये वचन मैं आप पर दोष लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो वचन मैं आपको सिखा रहा हूँ पहले मेरी जवाबदारी है उसके लिए। If I teach you something and I don't practice it in my life, I would be the biggest hypocrite before God. अगर मैं आपको कुछ सिखाता हूँ और अपनी जिंदगी में नहीं करता हूँ तो परमेश्वर के सामने सबसे बड़ा ढोंगी मैं हूँ। So you remember three things? 3 बातें याद है। First is पहला, hypocrisy. ढोंग। We need to overcome hypocrisy. इसीलिए उस ढोंग And पर जय hypocrisy पाना। is, you know why many times we act like that? Because hypocrisy is celebrated. और पता है क्यों हम ऐसा नाटक करते हैं लोगों के सामने? क्योंकि ऐसे नकली तस्वीर जो है उसको बहुत मनाया जाता है, बहुत बढ़िया माना जाता है दुनिया Because में। it's so glorified. You see Hollywood and all of that is fake. क्योंकि इतना महिमा से भरा हुआ है हॉलीवुड और ये सब नकली है जो आप देखते हैं। In the Greek Bible, the word hypocrite comes from the word actor. यूनानी भाषा में ढोंगी शब्द जो है वो आता है एक्टर शब्द से या नाटक करने वाले से। You know, one day the Lord told me, He said, if the way you pray in your room when nobody watches you is not the way you pray outside when people watch you, it's a hypocritical prayer. प्रभु ने एक दिन मुझसे कहा, जैसे तू प्रार्थना अपने कमरे में करता है और जब कोई नहीं देख रहा, और जैसे तू प्रार्थना सबके सामने करता है जब लोग देख रहे हैं, अगर इन दोनों में अंतर है तो वो एक ढोंग की प्रार्थना है। Amen? So first is hypocrisy. सबसे पहला है ढोंग, Second is pride. दूसरा है घमंड। Because if you would not overcome your pride, you would not learn. क्योंकि अगर घमंड पे जय नहीं पाएंगे तो कभी सीखेंगे नहीं। And third is unbelief. और तीसरा है अविश्वास। That was Israelites' problem. जो समस्या थी इजरायलियों की। Guys, can you say aloud hallelujah? हालेलुया बोल सकते हैं जोर से? Or no, if you are still alive. पता लगेगा आप अभी भी जीवित हैं कि You are नहीं। so quiet. I know this word is not ooh, ah, ee. मुझे पता है उत्साहित करने वाला वचन नहीं है, But I can guarantee you, if you put this word into your practice, you will rule nations. लेकिन मैं वादा करता हूँ अगर आप इन बातों पर ध्यान देंगे, इन बातों को अपनी जिंदगी पर लागू करेंगे तो सच में आप देशों पर राज करेंगे। You know, that was the problem with Israelites. They could not believe what God said. इजरायलियों की दिक्कत यही थी कि वो विश्वास कर ही नहीं पा रहे थे जो परमेश्वर ने कहा था वो करेगा। You know, God sends them to spy the land of Canaan and see the two reports. परमेश्वर ने उनको भेजा कनान देश में जाके जासूसी करो और 2 अलग-अलग खबर लेकर के आते हैं। Okay, for example, somebody comes here for a report and someone says, oh, their stage is black. The other person says, no, their stage is charcoal color. That can be understood. हाँ, अगर मान लीजिए 2 लोग आते हैं यहाँ पर जिनको बोला जाता है कि आप बताओ विवरण करो कलीसिया कैसी थी, तो एक बताता है जी उनके स्टेज ब्लैक था, दूसरा बोलता है ब्लैक नहीं था लेकिन थोड़ा गाढ़ा सा रंग था कोई।
तो इतना चलता है, इतना फर्क चलता है। But look at their two reports. लेकिन इन दोनों खबरों में अंतर देख लो। They are like giants and we are like grasshoppers. एक रिपोर्ट कहती है कि वो तो दानव और उनके सामने हम टिड्डियां हैं, And the second report, और दूसरी खबर we're going to eat them for breakfast. कि इनको तो हम रोटी की तरह खा जाएंगे। What? That's complete east and west report. ये तो बिल्कुल विपरीत रिपोर्ट्स हैं दोनों। Do you know why God said that I'm angry with this generation? Not because they were smokers or they were adulterers or they were all these people in Israel. पता है क्यों परमेश्वर कहता है कि वो उस पीढ़ी से नाराज हो गया? इसलिए नहीं कि वो लोग स्मोक करने वाले या कुछ ऐसे बुरे काम करने वाले थे, लेकिन वो लोग, That is bad. Don't do that. हाँ वो सब गलत है, वो मत ना What करो। I'm saying is, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, Bible says because of their unbelieving hearts. बाइबल कहती है अपने हृदय में अविश्वास होने के कारण। Amen. Faith comes by how? विश्वास कैसे आता है? Faith comes by सुनने से। hearing, and hearing by the और सुनने कैसे आता है? word. परमेश्वर के वचन से। But let me also tell you something लेकिन ये भी बता दूं that you might not know. जो आपको शायद ना पता हो, Faith comes by hearing, विश्वास सुनने से आता है, and hearing by the word. और सुनना परमेश्वर के वचन को, And when word comes, और जब वचन आता है Satan also comes. तो शैतान भी आता है साथ में। What? क्या? God blessed Adam and Eve and told them, be fruitful, multiply, eat from every tree, not from this tree. Satan comes, has God really said? और जब परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीष दिया और कहा कि फूलो फलो पृथ्वी पे भर जाओ, हर एक पेड़ से खाओ, इस पेड़ से मत खाना, तो शैतान आता है। क्या सच में परमेश्वर ने ऐसा कहा है? Can I say something? If you don't have the word, Satan cannot steal anything from you. अगर आपके पास वचन नहीं है तो शैतान आपसे कुछ चुरा नहीं सकता, Because he comes to steal the word. क्योंकि वो वचन को चुराने के लिए आता है। When the word came to Adam and Eve, Satan came. When the word came to Jesus, you are my beloved son, Satan came. If you are really the son of God. He wants to bring doubt and steal the word of God away. If you want to mature, you need to learn to hold fast the word that you have heard from your father. क्योंकि जब वचन पिता से आदम और हवा के पास आया तो शैतान आया उसको चुराने के लिए। जब यीशु के पास वचन आया कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तो शैतान आया उस वचन को चुराने के लिए कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि थाम के रहो उस वचन को जो तुम्हें दिया गया, उस अंगीकार को, वो परमेश्वर का वचन जो तुम्हारे मन में बोया गया। Go home and read that parable. A sower went to sow the seed. Seed is the word. When the seed went to wayside, what happened? The birds came in, ate the seed, and Jesus said, that is Satan. और घर जाके उस दृष्टांत को पढ़े जहाँ पर वचन बताता है कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए गया, और जब उसने कुछ बीज डाले तो वो रास्ते में गिर गए और चिड़िया आके उसको ले गई, और यीशु बताते हैं कि वो चिड़िया शैतान है। Satan is not after your good looks. शैतान को आपके अच्छे दिखने से कोई दिक्कत नहीं है। He's after the word that you have heard from your वो father. उस वचन के विरोध में है जो आपके पिता से आपने सुना है। Because he knows if you will believe and keep holding on to the promise that your father told you, and that is going to come to pass. क्योंकि वो जानता है अगर वो वायदा जो आपके पिता ने आपको दिया है, आप उसको थाम कर बैठ गए तो आपकी जिंदगी में वो पूरा हो जाएगा। Amen. I was reading a book of a very successful man, multimillionaire, a lot of money. एक बहुत ही सक्सेसफुल आदमी है, मैं उनकी किताब पढ़ रहा था। Got cancer, went to the hospital. उनको कैंसर हुआ, अस्पताल गए, And then he said, in their hospital bed, और I तब began to see how empty my life was. और तब वो बताने लगे कि उस अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए मैं सच में देखने लगा कि मेरा जीवन कितना खाली है। And then he gave his life to Jesus. और तब अपनी जिंदगी उन्होंने प्रभु को दे दी। But what I'm saying is that don't strive to build this external kingdom. Build the kingdom that is in you, and external everything will follow you. मैं ये कह रहा हूँ कि इतना मेहनत, इतना प्रयास इस बाहर की इस नकली दुनिया को बनाने के लिए ना करें, लेकिन वो दुनिया जो आपके भीतर है उसको बढ़ाने के लिए, उसको बनाने का प्रयास करें, तो अपने आप जो बाहर है वो उसका पीछा कर लेगा। Jesus said to Pharisees, he said, you
You swallow the camel, but you fight for gnat. You know, I mean, like he said, you ignore the weightier matters of the law and you fight over petty things. यीशु शास्त्रीय फरीसियों से कहता है कि जो बड़े मुद्दे हैं व्यवस्था के, उसको तो तुम निगल लेते हो और छोटी छोटी बातों पर लड़ते हो. Amen? Are you still excited? Let's go on a quest that God, I'm going to lay aside every hypocrisy. आइए इसलिए हम इस यात्रा पर जाएं जहां परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं हर एक ढोंग जो अपने दिल में करता आया हूं उसको अपने से अलग करना चाहता हूं. I want to lay aside every hypocrisy. हर एक ढोंग को अपने जीवन से मैं अलग करना चाहता हूं. I want to walk like you walk, Jesus. जैसी जिंदगी आपने जी प्रभु, मैं वैसे जीना चाहता हूं. How many people want to be overcomers in this place? कितने लोग चाहते हैं कि अपने जिंदगी में आने वाली हर एक बात पर जय पाएं? Okay, so I have 7 amazing promises from the word for overcomers. तो 7 अद्भुत वायदे हैं उन लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी में आने वाली हर बात पर जय पाने के लिए तैयार हैं. Are you ready? Okay, guys, can you? Now Jesus is saying this to overcomers. और यीशु ये बातें उनसे कह रहा है जो जय पाने के लिए तैयार हैं. Okay, let's read it. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. वो जिसके सुनने के कान हो, सुन ले कि आत्मा कलीसियां से क्या कहता है. To him who overcomes, वो जो जय पाएगा, I will give to eat from the tree of life, मैं उसको जीवन के वृक्ष से खाने को दूंगा, which is in the midst of the paradise of God. जो परमेश्वर के फिरदौस के बीच में है. Now you will ask God, what should I overcome? और आप पूछेंगे परमेश्वर मैं किस बात पर जय पाऊं? You already know it. आपको पहले से ही पता है. You don't need to go on a fast to know what you have to overcome. इसके लिए उपवास पर जाने की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि आपको किस बात पर जय पानी है. We all know what we have to overcome. हम सबको पता है क्या किस बात पर जय पानी है. Amen? Our judgments, our jealousy, bitterness, competition, whatever. जो हम दूसरों को तुच्छ समझते हैं, दूसरों का तिरस्कार करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन रखते हैं, कड़वाहट रखते हैं. Okay. To he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcomes shall not be hurt by the second death. वो जिसके सुनने के कान हो, सुन ले कि आत्मा कलीसियां से क्या कहता है. वो जो जय पाएगा वो दूसरी मृत्यु से घावित नहीं किया जाएगा. The overcoming can start with cold. Please hear me carefully. ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ. जो ये जय पाने की प्रक्रिया है ये साधारण से सर्दी जुकाम से शुरू हो सकती है. But if you keep overcoming, you're going to overcome cancers, you're going to overcome different kind of viruses, and in the end, you're going to overcome death itself. हाँ, ये जय पाना छोटी मोटी सर्दी जुकाम से शुरू हो सकता है, लेकिन अगर आप इसमें बढ़ते रहे तो कैंसर्स और यहाँ तक कि आप मृत्यु तक को हरा देंगे. With all humility, let me say this: none of us got affected with corona, not one. मैं सारी नम्रता से इस Not बात को one. कह रहा हूँ कि हम में से किसी को भी कोरोना का प्रभाव नहीं हुआ. 1,000 will fall at my side, and 10,000 at my right hand, but it shall not come near me, says the Lord. कि 1000 मेरे बाईं ओर और 10,000 मेरे दाईं ओर गिरेंगे, लेकिन मेरे निकट कोई आपदा, कोई विपत्ति, कोई महामारी नहीं आएगी. परमेश्वर का वचन कहता है. Amen. Amen. Overcoming will start with little. And you know, kingdom is an overcoming kingdom. Jesus said, if you take yeast, if you take a handful of yeast and if you mix it with dough, what is going to happen? क्योंकि जो जय पाना है वो थोड़े से शुरू होता है. परमेश्वर का राज्य भी बिल्कुल वैसे ही है. यीशु ने कहा अगर तुम थोड़ी सी खमीर को लो और आटे में मिला दो तो क्या होगा? What will happen? क्या होगा? The yeast overcomes the entire dough. सारा का सारा आटा खट्टा हो जाएगा, खमीर हो जाएगा. Jesus said that, what is that seed?
Mustard seed, yeah. और यीशु ने कहा राई के दाने के लिए। Look at the mustard seed. राई के दाने को देखो, So small. बहुत छोटा सा, But Jesus gave the example. लेकिन यीशु ने उसका उदाहरण दिया Becomes huge. कि वो बड़ा होता है। This, you already have an overcomer living in you. पहले से ही आपके भीतर एक जय पाने वाला, जय पा चुका जी रहा है। You're like, Bhaiya, then why am I not able to overcome this smoking? Why am I not able to overcome the porn? Because you are trying to overcome it. Let him who lives in you, allow him to overcome whatever comes against your life. तो आप कहेंगे जब वो जय पाने वाला मेरे भीतर पहले से जी रहा है तो फिर मैं क्यों जूझ रहा हूँ सिगरेट पीने की लत से या फिर पोर्नोग्राफी से, हर एक बात से जिससे मैं जूझ रहा हूँ, क्यों जूझ रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि आप उसका सामना करना चाहते हैं, आप उन बातों पर जय पाना चाहते हैं, लेकिन वो जो आपके अंदर रह रहा है उसको मौका दें। Come on, with the loudest voice that you can, I want you to shout, I am an overcomer. Wait. Yeah. अपने पूरे दिल से पूरी आवाज जितनी आप चिल्ला सकते हैं इस बात को कहें कि मैं जयवंत हूँ। रुकें उसके लिए। Are you ready? तैयार हैं? Ready? तैयार Okay. हैं? We'll say 1, 2, 3 and then. मैं Okay? 3 तक बोलूंगा फिर। 1, 2, 3. बिल्कुल मजा नहीं आया। Let's do it again, church. चलो Are you दोबारा ready? try करते हैं। तैयार हो? Okay. 1, 2 okay. Shout as if all the giants who have stood against your life, they will hear that this overcomer is rising up. ऐसे अपनी आवाज को उठाओ जैसे वो सारे दानव जो आपके विरोध में आज तक राज करते आए हैं, सर उठाते आए हैं, आपकी आवाज को सुनकर कांप उठें कि ये जयवंत उठ खड़ा हुआ है।